morning, children. Myself Sanjay Kumar Gupta, Science and Maths teacher in St. Michael's Academy, Bettiah. Students, this is my 9th video for Science of Standard 8, Chapter 2, Microorganisms. Students, in this section, we will learn about food preservation. What do you mean by food preservation? The food preservation is the process by which we treat and store food to prevent its spoilage by bacteria, fungi and other microorganisms. मीन्स अपने भोजन के पदार्थों को हम बैक्टीरिया, फंगाई या अन्य किसी दूसरे सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं वही हमारा फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है. There are different methods for food preservation. आपने देखा होगा आपके घरों में भी भोज्य पदार्थों को बचाने के लिए तरह तरह के साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे अचार बना देना, चीनी के पाग में या चीनी के साथ किसी वस्तु को रख देना, नमक डाल देना और कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ जो हम डिब्बा बंद होते हैं या पैकेट में बंद होते हैं, उनको जो कंपनियां बाजारों में बेचने के लिए पैदा करती हैं, उसमें कई केमिकल्स डाले जाते हैं. फ्रीजिंग एंड पास्चराइजेशन, अबाउट विच वी हैव लर्न्ड इन previous classes also, they are also to be used for the preservation of food. So there are different methods are to be used for preservation of food, and these are first drying and dehydration. Drying means some food materials or edibles are to be dried in sun, as well as the water present in them are to be dehydrated. Second one is using common salt. Third, using sugar. Then making pickles or process of pickling, using chemicals, again by pasteurization, and next one is deep freezing. जैसे बहुत सारे सामानों को आपने देखा होगा, especially farmers use cold storage to preserve their food materials, and when the proper time come, they bring it to the market. So children, now it's time to read detail from book and learn more and more about food preservation. Food preservation. Microorganisms spoil our food, fruit and vegetables. Some bacteria and fungi grow over them when left unused for some days. You know, a bread slice left for 2 or 3 days under moist conditions gets covered with white cottony fluffy mass. It is a fungus mucor. Students, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम ब्रेड के टुकड़ों को 2 या 3 दिनों तक किसी मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर
कुछ रेशेदार रुई जैसी रचना आ जाती है जिसको हम फफूंद, म्यूको या फंगस के नाम से जानते हैं, और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हमारे भोजन, फल और सब्जियों को बर्बाद कर देते हैं। नाउ सम बैक्टीरिया और फंगाई भी उन पर कुछ दिनों तक वर्क करते हैं, ग्रो करते हैं और फिर उसको बर्बाद कर देते हैं। द वेस्टेज ऑफ फूड कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रॉपर मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। So what is food preservation? Food preservation is the process of treating and storing food to prevent its spoilage, either by killing the microbes or inhibiting their growth and making them inactive. अर्थात भोज्य संरक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम भोजन को या तो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर अथवा उनके वृद्धि के प्रभाव को रोककर और उन्हें अक्रिय करके हम भोजन को बचा सकते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, अर्थात भोजन को बचाने के लिए भोज्य संरक्षण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। इवन अबाउट देम आई हैव टोल्ड जस्ट now we will read in detail. Different food items need different methods of preservation. Some of these methods are: first, preservation by drying and dehydration. This is the oldest method of food preservation. Some fruits and vegetables are dehydrated either by drying in the sun or by heating. Spinach, cauliflower, methi leaves and mint leaves are dried in sun. Students, आपने अपने घरों में देखा होगा कि कुछ फल और सब्जियां जो एक खास मौसम में ही मिलते हैं। जब उनका मौसम खत्म होने लगता है तो उस समय हम अपने घरों में वैसे फलों और सब्जियों को सुखा लेते हैं ताकि हम उन फलों और सब्जियों को उस समय भी खा सके जब उनका मौसम नहीं हो, और इसके लिए हम उन्हें धूप में सुखाते हैं अथवा हीटर के द्वारा उसे सुखाकर फिर हम यूज कर लेते हैं। नाउ पीज आर preserved by heating, fish and meat are preserved by smoke and heat. Second, preservation by common salt. Preservation of food by adding salt is called salting. The meat and fish are covered with salt to drain out water by osmosis. अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन को नमक डालकर बचाया जाए उसको हम सॉल्टिंग या लवणीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे मीट और फिश, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा हम उनको सुरक्षित करते हैं। नाउ हियर वन वर्ड as the term has come, osmosis, we should know about it. And just we take the example, you have seen when we start making vegetables and just we cut the vegetables and keep it on the stove, we find after some time some water start coming from the vegetables. This is being due to the process of osmosis. इस प्रक्रिया में जैसा कि आपको बताया गया कि फलों और सब्जियों, खासकर आपने सब्जियों में जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में बताया कि आपने देखा होगा कि जब हम उसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं सब्जियों को काटकर तो उसमें से बहुत सारे पानी के कण बाहर आ जाते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है? वास्तव में जब
वे सब्जियां सूखने क्रम में आते हैं तो उनके अंदर जितने पानी होते हैं वह पुनः वापस उनके बॉडी से निकलते हैं और वही उस पूरे सब्जियों में फैल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। रॉ मैंगो, लेमन, आंवला, tamarind and other fruits and vegetables are preserved by salting. This inhibits growth of bacteria. Means जैसा कुछ फलों का नाम बताया गया, या सब्जियों को हम सॉल्टिंग प्रक्रिया से बचाते हैं, इसमें बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलता। एज यू नो दैट माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पेशली inhibits and grow in the situation of availability of water or in the circumstances when our atmosphere become humid and it becomes full of water. Preservation by sugar. Sugar syrup containing 68% sugar is used for the preservation of fruits and vegetables. Such a high concentration of sugar reduces moisture contents and thus prevents growth of microbes. Friends, शुगर सिरप जिसमें फलों और सब्जियों को प्रिजर्व कराया जाता है, उसमें 67% शुगर का होना अनिवार्य है। और इस तरह जो हाई कंसंट्रेटेड में ये जो गाढ़ापन शुगर के कारण आता है वह माइक्रोब्स की वृद्धि को रोकता है और उसमें नमी को बढ़ने नहीं देता है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय sugar. Carrots, plums, ripe mangoes, amla, apple, etc. are used for this purpose. Preservation by pickling means अचार बनाना. Oil and vinegar are used to make pickle because bacteria cannot survive in high acid contents of the मीडियम। यानी जब अचार बनाते हैं, या आपने देखा होगा अचार को जब संरक्षित किया जाता है उस समय उसमें तेल की मात्रा डाली जाती है, नमक की मात्रा डाली जाती है, साथ में कुछ एसिडिक कंटेंट्स जैसे साइट्रस फ्रूट या विनेगर का यूज होता है और ये अचार को संरक्षण प्रदान करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक रॉ मैंगोज, लेमन, चिलीज एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड एज पिकल. सॉल्ट और सुगर इज एडेड टू द पिकल टू इनहांस इट्स टेस्ट. प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स. Citric acid is added to pickles and some squashes, while sodium benzoate and sodium metabisulfite are used as preservation to preserve squashes, jams and jellies. जैसा कि पहले ही मैंने बताया था, कुछ जो पैकेट्स बंद या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें प्रिजर्वेशन करने के लिए अथवा स्वाद को अच्छा बनाने के लिए कुछ रसायन जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इत्यादि का प्रयोग करते हैं और उनको संरक्षण प्रदान करते हैं. प्रिजर्वेशन बाय पास्चुराइजेशन. अबाउट पास्चुराइजेशन, यू आर अवेयर दैट पास्चुराइजेशन is the process of heat and cold treatment to which milk is subjected to make it bacteria free. The milk is heated to 62 degrees Celsius for 30 minutes or 70 degrees Celsius for about 15 seconds
and then chilled suddenly. The process of pasteurization was discovered by Louis Pasteur. यानी पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन, जिसमें दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं अथवा 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं और फिर अचानक से उनको ठंडा कर देते हैं, जिससे उसमें माइक्रोब्स के पनपने की संभावना बहुत कम हो जाती है या नहीं के बराबर रह जाती है। और इस प्रक्रिया का प्रतिपादन किसने किया था? लुईस पास्चर ने। द मिल्क ट्रीटेड दिस वे इज कॉल्ड पास्चुराइज्ड मिल्क एंड कैन बी सेफली यूज्ड विदाउट बॉइलिंग। स्टोरिंग फूड at sub-zero temperature in deep freeze or in cold storage at a temperature about 18 degree Celsius is also a safe method of food preservation. स्टूडेंट्स, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि कुछ अनाज या सब्जियों, फलों इत्यादि को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं, यानी डीप फ्रीजिंग प्रक्रिया द्वारा, जहां पर उसका तापमान -18 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और फिर इस टेम्परेचर के अंतर्गत ही हम फूड को संरक्षित करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। डीप फ्रीजिंग प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ एंड inactivates the enzymes. Therefore, deep frozen cold remains flavor as well as freshness. अर्थात इस तरह से जब हम बहुत ठंडे फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में जब किसी चीज़ को रखते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है और फिर एंजाइम्स भी पैदा नहीं हो पाते, जिससे भोजन में फ्लेवर यानी स्वाद के साथ साथ ताजगी भी नजर आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हैव परमिटेड ओनली 2 chemical compounds as food preservatives. These are sodium benzoate and sodium metabisulfate. These are harmless and can be safely used as preservatives in fruit juices, squashes, jams, chilies and pickles. Now children, it's time to do checkpoint 5 and about nitrogen fixation I will tell you in the next video. Thank you.